देखो स्क्रीन दिख रही है सारिਆਂ ਨੂੰ? हेलो हाँ जी सर दिख रही है। हाँ चलो ठीक। तो बच्चे आज का अपना जो टॉपिक है वो एक छोटा जिहा टॉपिक है, वो आ सकता पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ, वो है रिस्पोंसिबल एनवायरमेंटल बिहेवियर। रिस्पोंसिबल एनवायरमेंटल बिहेवियर जिवें ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, द एनवायरमेंट मीन्स आवर सराउंडिंग्स which include our physical, biological, psychological and social factors like the people and groups among which we live। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਸੋਸ਼ਲ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ এনवायरमेंट ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ এনवायरमेंट मीन्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿविंग ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ नॉन लिविंग है, सारे तरह के फैक्टर्स आएंगे। The environmentalists are trying their best to educate the people at all levels and stages। The responsible environmental behavior ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ environmentalist हैं वो हर एक बच्चे ਨੂੰ, हर एक व्यक्ति ਨੂੰ हर स्टेज ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ कोशिश कर रहे हैं। Various approaches and strategies are used to make people aware about environmental problems and their causes। लोगों ने दसिया जा रहा है कि किहड़ियां environmental ਦੀਆਂ problems ने और क्या कारण है, किस तरह उन्होंने दूर कराया जा सकता है, सारी चीज़ां लोगों ਨੂੰ दस रहे हैं। The higher level of awareness, responsible environment management practices by identifying and establishing environmental principles, goals and objectives। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਟੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੁੱਡ ਲੀਡ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੌਲੇਜ ਐਕਟਸ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਰੈਕੁਇਜ਼ਿਟ, ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕਿੱਲਸ ਆਰ ਨੈਸੈਸਰੀ ਫॉर ਅਪਲਾइंग ਨੌਲੇਜ, ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, है ना, वो होना जरूरी है। एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ का होना जरूरी है ताकि आप किसी नैसेसरी जो एक्शन है वो लै सकिए रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंट बिहेवियर के लिए। रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंट बिहेवियर इज डिफाइंड एज अ डिमॉन्स्ट्रेशन और आस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एम्पैथी दैट इंक्लूड्स एक्टिविटीज which have been recommended to resolve problems in natural environment according to वैन लेरे एंड डनलैप 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ कि ਜਿਹੜਾ रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंट बिहेवियर है, यह क्या है, इन्हें डिफाइन कराया डिमॉन्स्ट्रेशन और आस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एम्पैथी। आप इन्वायरमेंटल एम्पैथी दिखानी है जो जिस दे विच क्या है, दैट इंक्लूड्स एक्टिविटीज विच हैव बीन रिकमेंडेड टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स। जिस दे विच क्या है, वो सारे काम ने जिस दे विच आपां नैचुरल इन्वायरमेंट ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ प्रॉब्लम्स है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ठीक ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ जो भी काम करते हैं वो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? हाँ जी सर। The responsible environmental behavior is important for all of us। ये बहुत जरूरी है। Environmental sensitivity, knowledge of environmental action strategies and skills in environmental action strategies are significantly predict responsible environment behavior। नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, इंटरस्ट, एटीट्यूड, स्ट्रैटेजीज, ये सारियां जरूरी ने इन्वायरमेंटल बिहेवियर के लिए। एंड इंडिविजुअल्स इंटेंशंस एंड कमिटमेंट टू बिहेव इज मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंटल बिहेवियर। देखो ये बहुत जरूरी है, किसी व्यक्ति का अटेंशन, इंटेंशन एंड कमिटमेंट आ दो गल्लां होनियां बहुत जरूरी है। मैं मेरी इच्छा है किसी काम नूं करन दे लई और उस दे प्रति मैं कमिटेड है, कमिटमेंट भी चाहिए है। इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए है, कला सिर्फ सोच के गल नहीं बननी, उसके लिए अपन कुछ एक्शन भी करना पड़ेगा, कुछ जो स्ट्रैटेजीज हैं उन्होंने अपन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए इच्छा और कमिटमेंट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। द इन्वायरमेंटल अवेयरनेस
gives rise to responsibility in minds of people to act eco-friendly। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਏਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਲੀਥੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਔਰ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੂ ਬਿਹੇਵ ਔਰ ਟੂ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਸੇਵ ਦ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, दिस बिहेवियर इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सॉल्व। और ये जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है इन्वायरमेंट के प्रति ये बहुत जरूरी है इन्वायरमेंट दी बहुत सारिया प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इन्वायरमेंटल बिहेवियर मीनस एन इंक्रीज ऑफ नॉलेज अबाउट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इन्वायरमेंटली बिहेवियर असी रिस्पॉन्सिबली ता ही कर पावे पहला अगर सानू नॉलेज वाधा होएगा, इकोलॉजिकल एंड ह्यूमन इंप्लीकेशंस होणगियां, ये सारियां जिहड़ियां हैगियां ने वो सानू रिस्पॉन्सिबली बिहेव करने के लिए मोटिवेट करते हैं। बच्चे कंसैप्ट समझ आया क्या है रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंटल बिहेवियर? हाँ जी सर। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਹੇਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦਸੀਆਂ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ठीक है, ये होना चाहिए ने और उस तो पहला भी वो बारे नॉलेज होनी चाहिए है अबाउट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की, स्ट्रैटेजीज की, अप्रोचेज की, और फिर उन्होंने अपलाई करने के लिए स्किल्स साढ़े होनी चाहिए ने। आप ही उन्होंने प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं इन्वायरमेंट दियां और आप ही जो रिस्पॉन्सिबली बिहेव भी करांगे। ठीक है, नैक्सट है एन इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल परसन इज वन हू हैज़, नीचे जो तीन गल्लां हैं समराइज कीतियां ने एंड अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टू द इन्वायरमेंट। व्यक्ति जड़ा है अवेयर है प्रॉब्लम्स के लिए इन्वायरमेंट के प्रति और सेंसिटिव भी है एंड इज अलाइड प्रॉब्लम्स, और उसके नाल जिहड़ियां जुड़ियां हुई प्रॉब्लम्स ने। अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है, अवेयरनेस भी है, सेंसिटिविटी भी है और अंडरस्टैंडिंग भी है। आ तीन जिहड़े शब्द ने इसके विच ये इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस, सेंसिटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इन्वायरमेंट के प्रति और उसके नाल जिहड़े रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं सारियां के प्रति जिहड़ा है वो व्यक्ति अवेयर होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए और उन्होंने अंडरस्टैंडिंग उन्होंने चीज़ों की प्रॉब्लम्स की होनी चाहिए। फीलिंग्स ऑफ कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट एंड मोटिवेशन फॉर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन। देखो इस दो तीन शब्द जिहड़े हैगे ने, फीलिंग ऑफ कंसर्न एंड मोटिवेशन फॉर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। एक तो कंसर्न होना चाहिए, एक तो आप कहने हैं ना भी कुछ खाया पिया और आप सड़क पर ही सिट देने, कोई भी समान जो है, कोई रैपर है, कोई पॉलीथीन बैग है, कुछ भी है आप सिट देने रस्ते। ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए कि ये साडा जिहड़ा शहर है, साडी इन्वायरमेंट है, अपन इसनूं आप साफ रखना है। ठीक है, मोटिवेशन फॉर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, और फिर दूसरी गल क्या है, वो जो व्यक्ति है रिस्पॉन्सिबल है, इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो व्यक्ति करेगा वो मोटिवेट भी होएगा एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको ठीक करने के लिए वो जिहड़ियां भी एक्टिविटीज़ होंदियां ने उन्हां दे विच एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, पेड़ पौधे भी लगाएगा या गंद नहीं पाएगा। ठीक है ना, जिवें आपां मैनेजमेंट ऑफ नैचुरल रिसोर्सिस आपां ने करिया है, तुसीं करिया है, किवें आपां हवा नूं ठीक रख सकते हैं, किवें आपां पानी नूं ठीक रख सकते हैं। ठीक है ना, उन्होंने पोल्यूट नहीं करना है, तो वो सारियां उहदे च एक्टिवली वो व्यक्ति जिहड़ा है वो पार्टिसिपेट करता है। स्किल्स फॉर आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन वर्किंग टुवर्ड्स रिजोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। जो इन्वायरमेंट दी प्रॉब्लम्स है उन्होंने सॉल्व करने के लिए वो रेजोल्यूशन भी लेगा कि मैं अज तो बाद ये काम करांगा, इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करांगा। ठीक है, उस प्रति वो रेजोल्यूशन लेगा। और जी स्किल्स की मैं गल कर रहा सी, वो स्किल्स बहुत ज़्यादा जरूरी ने कि किस तरह आप उन्होंने ठीक प्रॉब्लम्स को इन्वायरमेंट दी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये समझ आया है, तीन चार चीज़ा समराइज किया इसने ऊपर वाले।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਮਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਬੋਟਲ ਕੈਨ, ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੂਰ ਓਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗਸ ਫॉर ਸ਼ਾਪਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਜੂਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਟੈਪਸ ਨਾਟ ਰਨਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਵਾਈਲ ਬ੍ਰਸ਼ਿੰਗ। ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੈਦਰ ਦੈਨ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲਸ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਦ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਔਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ has revealed a number of variables that are somehow linked to environmental behavior. In other major reviews in the educational perspective, Hines ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮੇਜਰ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਲੱਭੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਰ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ? ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਫੈਕਟਰਸ। ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ क्या है? नॉलेज ऑफ इशूज़ है, एक्शन स्ट्रैटेजीज है, एक्शन स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ां आउंदियां। पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं, पर्सनैलिटी दे विच एटीट्यूड, लोकस ऑफ कंट्रोल, परसैप्शन, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझदा है चीज़ां दे लई। इंटेंशन टू एक्ट है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए किसी काम नूं करन दे लई, एक्शनस हैं, ठीक है ना। दैन सिचुएशनल फैक्टर्स हैं, सोशल मोटिव्स है, इकनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किसी को मौका मिलता है काम करने का तो व्यक्ति जरूर कर लेता है। डेमोग्राफिक वेरीएबल्स है, लाइक एज, इनकम, एजुकेशन, जेंडर, ये सारे आएंगे। तो ये मैं कहता मेन 5 चीज़ां ने जिहड़ियां आपां प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिहड़े फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बच्चे के रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, इन्वायरमेंटल बिहेवियर, ठीक है। इस तो इलावा एक आप करांगे डायग्राम, अगर तुहानूं दिख रहा है फिगर, हाइंस मॉडल ऑफ रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंटल बिहेवियर है। बच्चे दिख रहा है तुहानूं ये सारा कंप्लीट? देखो तो हाँ जी सर, दिख रही। पढ़या जा रहा है बच्चे? हाँ जी सर। हाँ, इसने कहा कि 3 चीज़ां ने, एटीट्यूड्स, लोकस ऑफ कंट्रोल एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आ 3 चीज़ां जिहड़ियां मिल के आ पर्सनैलिटी फैक्टर्स बनादियां ने, और जिहड़ी इंटेंशन टू एक्ट है वो डिपेंड करती है पर्सनैलिटी फैक्टर ते, नॉलेज ऑफ इशूज़ ते, नॉलेज ऑफ स्ट्रैटेजीज ते और एक्शन स्किल्स ते। आ 4 चीज़ां जिहड़ियां मिल के वो व्यक्ति नूं मोटिवेट करदियां ने या इंटेंशन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ सर ये ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ एक ਫੈਕਟਰ। बार दोबारा रिपीट करना, हाइंस मॉडल। हाँ मैं ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਲੋਕਸ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰਸ, ਔਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ। ਆ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ मोटिवेट करदियां ने या उसके अंदर इंटेंशन जगादियां ने कि असी इन्वायरमेंट के प्रति कोई अच्छा काम करना है, रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है। जब उसमें नॉलेज होएगी, इशूज़ की नॉलेज होएगी, स्ट्रैटेजीज़ की नॉलेज होएगी, एक्शन स्किल्स की भी आप क्या काम कर सकते हैं, उसका पर्सनैलिटी इस तरह की होएगी कि एटीट्यूड जोड़ा है इस तरह का होएगा, ठीक है ना, कि मैं अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखना है, बचाना है, खराब नहीं होने देना। तो ये इंटेंशन को क्रिएट करदियां ने बच्चे दे विच, व्यक्ति दे विच। जो इंटेंशन हो जाती है उसकी टू एक्ट किसी काम नूं करन दे लई, तां फिर वो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करता है। और उसका रिस्पॉन्सिबल जिहड़ा इन्वायरमेंटल बिहेवियर है वो आल्सो डिपेंड्स अपॉन सिचुएशनल फैक्टर्स, ठीक है, कि किस तरह की उसमें सिचुएशनस मिलियां ने। सिचुएशनल फैक्टर्स अपने इत्थे गल करी सी किते
आ रहे सच एज सोशल मोटिव्स, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, इन्हां सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है साडा रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंट बिहेवियर। होर बहुत सारे मॉडल्स हैंगे सीगे और जिस दे विच आह जिहड़ा है एक होर मॉडल है इन्हें बनाया 1990 का जिहड़ा मॉडल है उस दे विच 3 कैटेगरीज ने कईयां ने एंट्री लेवल वेरीएबल, ऑनरशिप वेरीएबल एंड इंपावरमेंट वेरीएबल। इस दे विच क्या आ रहा है कि जिहड़ा एंट्री लेवल बिहेवियर है, एंट्री लेवल बिहेवियर दे विच ये जिहड़ा है सीम टू प्रेडिक्टर्स एंड इंक्लूड प्री रिक्विजिट वेरीएबल्स। इस दे विच आएगा इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी होनी चाहिए है, नॉलेज ऑफ इकोलॉजी होनी चाहिए है, एटीट्यूड टुवर्ड्स पोल्यूशन होना चाहिए है। ये सारे एंट्री लेवल ते ने, मतलब बेसिक नॉलेज है जो एक व्यक्ति को होनी चाहिए है। दूसरा है ऑनरशिप वेरीएबल विच मेक इन्वायरमेंटल इशूज पर्सनल। इस दे विच क्या होंदा है, बेसिक नॉलेज तो बाद, बेसिक वेरीएबल्स तो बाद ऑनरशिप वेरीएबल है जिस दे नाल बच्चे को ये लगता है कि जिहड़ा इन्वायरमेंट इशू है ये मेरा अपना पर्सनल इशू है। हुण तां आपां कहने हैं ना भी इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है तो अपना की है उहदे नाल, है ना, अपना कुछ नहीं है। लेकिन ਉਹ ਜਿਹੜਾ है ऑनरशिप वेरीएबल ये करते हैं कि उस प्रॉब्लम ਨੂੰ ਆਪਾਂ अपना समझना शुरू कर देंगे हैं कि अगर ये इन्वायरमेंट ठीक नहीं होएगा तो उसका असर मेरे ते भी पेगा, ये मेरी भी प्रॉब्लम है तो मैं इसको ठीक करना है। ठीक है, ये दो मेन वेरीएबल्स है इन डेप्थ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। ये बेसिक नॉलेज सी हुण इत्थे अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशूज आ गया और पर्सनल इन्वेस्टमेंट है उसको ठीक करने के लिए आप पर्सनल इंटरस्ट लैने उस प्रॉब्लम को ठीक करने। थर्ड है empowerment variable enables human being to feel that they have the ability to make changes। ਹੁਣ empowerment variable है इस दे विचों व्यक्ति ये समझदा है कि जो मेरी प्रॉब्लम है पर्सनल प्रॉब्लम है इहनूं मन्निया है एनवायरनमेंट को ठीक करने दे लई उसनूं चेंज करने दे लई मेरे च एबिलिटी है। नॉर्मली व्यक्तियों की ये सोच होती है कि मैं कल्ला क्या करांगा, मैं कल्ला बदलाव नहीं कर सकता, है ना। लेकिन ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ने क्या करना है बच्चे ਦੇ ਵਿੱਚ व्यक्ति ਦੇ ਵਿੱਚ फीलिंग आती है कि मेरे 'ਚ एबिलिटी है कि मैं चेंजेस कर सकता है एनवायरनमेंट को ठीक कर सकता है एंड हेल्प टू रिजॉल्व द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। एम्पावरमेंट वेरिएबल इंक्लूड परसीव्ड स्किल इन यूजिंग एनवायरमेंटल एक्शन स्ट्रैटेजीज। इस दे विच असीं बच्चे नूं दसना है कि किहड़ी-किहड़ियां एक्शन स्ट्रैटेजीज है जिन्हां दे नाल एनवायरमेंट को ठीक कराया जा सकता है। नॉलेज ऑफ एनवायरमेंटल एक्शन स्ट्रैटेजीज, लोकस ऑफ कंट्रोल एंड इंटेंशन टू एक्ट। इस दे विच आपां ने बच्चे दे विच मन दे विच इंटेंशन टू एक्ट अपने डिवेलप करना है ताकि बच्चा जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई काम जरूर करे। ठीक है, एक लास्ट टाइम के विच मैं देखा सी ना एक क्वेश्चन आ रखा सीगा एक कंपोनेंट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंट बिहेवियर का। तो ये छोटा जिहा पॉइंट आप इहनूं कर लेने 5-7 पॉइंट ने। इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट सब कैटेगरीज ऑफ कंपोनेंट्स इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। ठीक है, हंगरफोर्ड एंड पेटन ने 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। परसुएशन एक्शन, आ वर्बल एफर्ट टू मोटिवेट समवन, आप बोल के किसी को आप कहने भी हाँ अपन एनवायरनमेंट के लिए काम करना है। ठीक है, चाहे डिबेट है चाहे लेटर राइटिंग है, परसुएशन है किसी को आप कहने हैं। दूसरा है कंज्यूमरिज्म, एन इकोनॉमिक थ्रेट एम्ड एट मॉडिफिकेशन इन बिजनेस और इंडस्ट्री, बायकॉटिंग एंड डिस्क्रिमिनेटिंग यूज ऑफ गुड्स। कंज्यूमरिज्म ये कहता भी जिहड़ियां एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने आपां नूं बायकाट करता है प्रोडक्ट। पॉलिटिकल एक्शन है, एन एफर्ट एम्ड एट परसुएडिंग एंड इलैबोरेट लेजिस्लेटर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज टू कन्फर्म द वैल्यूज हेल्ड बाय द पर्सन और पर्सनस हु इनिशिएटेड द एक्शन। लॉबिंग और वोटिंग है, पॉलिटिकल एक्शन है ना, जिहड़ा एनवायरनमेंट के लिए काम करेगा आपां उहनूं वोट करांगे। लीगल एक्शन है, इस दे विच क्या है कोई लीगल जुडिशियल एक्शनस ले लैने आपां, एनवायरमेंटल लॉ बना देने हैं, कुछ बैन कर देने आपां कुछ ऑर्गेनाइजेशंस नूं जिहड़ियां एनवायरमेंट नूं खराब कर रही ने। इको मैनेजमेंट है, एनी फिजिकल एक्शन एम्ड एट मेंटेनिंग और इंप्रूविंग नेचुरल सिस्टम्स लाइक रीफोरेस्टेशन है, अर्बन लैंडस्केपिंग है कि ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ने आपां ने। इको मैनेजमेंट सिस्टम है, ये काम करते हैं आपां। और इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन क्या होता है जिहड़े उपर अपने 5 पॉइंट करे इन्हां चों 2 या 2 तो वध कोई भी चीज़ां मिला के आपां इहनूं इंटरैक्शन कहने हैं। ठीक है, ये मॉडल सीगा बच्चे 1977 का। ठीक है, इन्हें 5 कंपोनेंट्स जिहड़े हैगे ने इसने दिते सीगे। ये तुहाडे क्वेश्चन आया होया पिछली बार अगर तुसीं पेपर पढ़िया होएगा मैं जिहड़े भेजे सी। उस तो बाद कुछ होर रिसर्चिज हुईयां और इन्हां नूं जिहड़ा है इन्हां ने अगेन दोबारा तो जिहड़ा है वो इनू रीस्ट्रक्चर करिया और रीस्ट्रक्चर करन दे विच इन्हां ने की कीता है
5 कैटेगरीज रिलेटेड ने। इंटरैक्शन की कैटेगरी हटाती है और जी कंज्यूमरिज्म की सी उन्होंने इकोनॉमिक एक्शन करता, बाकी सारा चीज़ा सेम ही, 4-5 चीज़ा सेम ही, बस सिर्फ कंज्यूमर इंटरैक्शन वाली हटाती है। एक छोटा जहा मॉडल हो रहा है, लास्ट टॉपिक है अपना इसका, सिंपलिस्टिक लीनियर मॉडल ऑफ इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। ऊपर अपने थोड़ा कॉम्पलैक्स मॉडल कराया है, सिंपल जो मॉडल है क्या कहता है, ट्रेडिशनली द assumption was that increased environmental knowledge would automatically lead to environmental awareness। knowledge जी है वो automatically lead to environmental awareness perceptions that would in turn lead to provide pro environmental attitude। और जो environmental knowledge होगी, increased environmental knowledge होगी बच्चे, वो जी है वो ऑटोमैटिकली लीड करती है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस या परसैप्शनस नू, और जो अगे फिर दोबारा लीड करती है प्रो इन्वायरमेंटल एटीट्यूड। ठीक है, एक ये लीनियर मॉडल है, ऐसा आगे आगे चलता रहता है। दैट विल बी एक्सप्रेस्ड एज ओवर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंटल बिहेवियर, और जो कि एक्सप्रैस करा जा सकता है ओवर्ट। ओवर्ट बिहेवियर पता है केड़ा हुंदा ना, ओवर्ट बिहेवियर होंदा है जो आपको दिखता है, बच्चा जो भी काम करता सानू बाहर दिखता है। एक होंदा कोवर्ट बिहेवियर, बच्चे के थिंकिंग प्रोसैस इंटरनल मैंटल दे विच चलदे हुंदे ने, सानू असीं उन्हां दे बारे सानू नहीं पता लग सकता। ओवर्ट बिहेवियर बच्चे का फिर ये दिखता है। एक तुहानू फिगर है तुहाडे कोल, नॉलेज है पहला इन्वायरमेंटल इशूज़ के बारे, नॉलेज तो बाद फिर अवेयर हो गया, इन्वायरमेंटल एटीट्यूड उहदे डिवेलप हो गए, है ना, और उस तो बाद फिर जो व्यक्ति है वो रिस्पॉन्सिबल बिहेव करता है इन्वायरमेंट। ठीक है बच्चे, ये सीगा साडा अज दा टॉपिक। कोई डाउट है बच्चे किसी ने तो पूछो।